First is the definition. So what is transformer? A transformer may be defined as a static device that transfers electrical energy from one circuit to another circuit at the same frequency but with change voltage or current or both through a magnetic circuit. So what are the key points here? Transformer may be defined as a static device. Key point is this static device. In transformer, there is no element which is rotating. Unlike a motor, motor has rotating part. Motor is something which rotates, has rotor. While in transformer, there is no part which is rotating or moving. So transformer is a static device. It transfers electrical energy from one circuit to another circuit. One circuit is primary winding to another circuit means to the secondary winding at which load is connected. Transfer electrical energy from one circuit to another circuit. Primary once from first circuit is primary, second is secondary winding at which load is connected at the same frequency. Your whole operation of the transfer remains at fixed frequency, let's say 50 hertz. So at the input side, the source frequency is the supply frequency is of 50 hertz. Means this voltage at the frequency of 50 hertz. Same at the output side, this V2 E2 has the same frequency 50 hertz. There is no change in frequency. But with the change voltage or current or both, normally voltage gets changed, then automatically current will change. ठीक है, through a magnetic circuit. So first of all, but with change voltage or current or both. So first of all, you understand transfer is not an amplifier. ट्रांसफर इज नॉट एन एम्पलीफायर. एम्पलीफायर क्या करता है? आप जितनी पावर इनपुट पे दोगे उसको या तो मैग्नीफाई करेगा या तो एट्यूनेट करेगा. मेनली उसको एम्पलीफाई करेगा, उस पावर को इंक्रीज करेगा, पावर के मैग्नीट्यूड को. ठीक है, एम्पलीफायर क्या काम है? पावर को या सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा. बट एट ट्रांसफॉर्मर वट एवर द पावर एट द इनपुट साइड is exactly same as the power at the output side. In an ideal case, power at input terminals is equal to power at output terminals. What is power? What is power at input terminals? V1, let's say this is I or I1. V1 I1 is equal to V2 I2. So power is voltage into current. Power at input side क्या है? Power at input side is V1 I1 is equal to a power at output side, it is V2 into I2. So this power remains constant at input and output. Let's say transformer job is to either step down the voltage or step up the voltage. ठीक है, ट्रांसफर क्या करता है? एप्लीकेशन क्या ट्रांसफर की? ट्रांसफर की एप्लीकेशन क्या है? either to step down the voltage, step up the voltage. जैसे हमारा जो पावर स्टेशन है, let's say THDC or any thermal power station that you can imagine in your nearby area as a hydro station or a thermal power station. ठीक है, let's say THDC or say if someone is belongs to Tanakpur, there is a plant in Tanakpur, or if someone belongs to any hydropower station, there are so many hydropowers in Uttarakhand. So power is generated at 15.9 kV. Power is generated at 15.9 kV voltage. But for transmission, it is a generation voltage. But for transmission, we have to step up this voltage from 15.9 to 220 kV or 400 kV or 765 kV. There are different levels of transmission. ठीक है, there is a generation voltage level, then there is a transmission, there are distribution voltage level. All are different voltages level. So we usually generate at 10.5 volt or 15.6 volt or 20.1 kV. Then we step up to either 220 kV, 400 kV or 765 kV. We ठीक है. So transfer is to either to step up. जनरेटिंग एंड पे क्या कर रहे हैं? ट्रांसफार्मर से जितना वोल्टेज जनरेट कर रहा है उसको ट्रांसमिशन करने के लिए हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं. वोल्टेज क्यों बढ़ा रहे हैं? बिकॉज एट हाई वोल्टेज our losses will be, our I square losses will be less. वोल्टेज ज्यादा करंट कम, मतलब I square R लॉस के होंगे कम होंगे. So application of transformer is to either step up
और स्टेप डाउन, यहाँ पे हमने स्टेप अप किया। वैसे जब हम ट्रांसमिशन करते हैं जनरेटर, हम जो हमारा जो पावर प्लांट है वहां पे हमने वोल्टेज को स्टेप अप किया जनरेटिंग वोल्टेज से ट्रांसमिशन वोल्टेज लेवल पे। इट कैन बी 400 केवी, इट कैन बी 765 केवी। जब वो जैसे हमारी पावर यूनिट पावर एट लेट्स से इन हल्द्वानी और लेट्स से इन रुड़की, और आपके पावर कहां से आ रही है, THDC से, टेहरी से। सो वहां पे आपने जनरेटर को पहले स्टेप अप किया, फिर पावर ट्रांसमिट होते हुए एट लेट से 400 केवी और 765 केवी पे ट्रांसमिट होते हुए आपके होम एरिया में आई, सब स्टेशन में, लेट से हल्द्वानी और रुड़की, एनी सिटी यू कैन इमेजिन। फिर वहां को हमें जब पावर सिटी में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, सो वी नीड टू स्टेप डाउन द वोल्टेज लेवल। अभी पावर 15.6 केवी पे जनरेट हुई, फिर हमने ट्रांसमिट किया उसको ट्रांसमिशन वोल्टेज लेवल पे, लेट्स से 400 केवी, 765 केवी, ठीक है, दीज आर यूजुअल वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन। देन वी स्टेप डाउन बैक टू 220 केवी, देन 66 केवी, देन 33 केवी, देन 11 केवी। जो हमारे घर के बाहर जो लाइन आ रही है, इट इज 440 वोल्ट, ठीक है, वो 440 वोल्ट की लाइन है जो घर के बाहर, जो घर पे लाइन आ रही है हमारे, ठीक है। तो हम इसको स्टेप डाउन करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लेवल के लिए, डोमेस्टिक वोल्टेज लेवल के लिए। और जैसे हमारी कोई फैक्ट्री है तो वह हम 11 केवी की लाइन देते हैं। तो ट्रांसफार्मर जॉब इज टू आइदर स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज, ठीक है। So power at the input and power at the output remains constant. So therefore our power is not an amplifier. It is not amplifying the power. Power remains constant. So this is one of the point. It is a static device. Nothing is rotating. Power whole operation occurs at same frequency. जो भी voltage का frequency input पे होगा वही output पे होगा, ठीक है। अब क्या, through a magnetic circuit. Through a magnetic circuit. ये कैसे? पहली हमने क्या लिखा है, सेकंड लाइन क्या हमारी, द इलेक्ट्रिक सर्किट विच रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम सप्लाई। सप्लाई मतलब ये जो वोल्टेज सोर्स है, लेट्स से दिस इज जनरेटर, ये जो जनरेटर है, द इलेक्ट्रिक सर्किट विच रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम द सप्लाई मींस ये हो गया V1 इज कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग। मतलब जो वाइंडिंग हमारी मेन से सप्लाई ले रही है, दैट इज प्राइमरी वाइंडिंग। एंड द अदर सर्किट विच डिलीवर्स इलेक्ट्रिकल पावर or electrical energy to the load is called secondary winding. So जो winding सोर्स से पावर ले रही है, सोर्स से करंट ले रही है, एनर्जी ले रही है, that is primary winding. It has, ठीक है। and the winding and the other circuit, जो winding which is delivering power to the load, which is delivering power to the load, जो लोड को पावर डिलीवर करेगी सेकेंडरी वाइंडिंग है। सो लोड कैन बी आइदर इंडक्शन मोटर, लोड कैन बी एनीथिंग, आ हाउस होल्ड लोड। आपके जो आपका जो घर का एरिया होगा, यू कैन जस्ट गो आउट एंड यू कैन सी अ ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है, अ पोल माउंटेड ट्रांसफॉर्मर। सो लोड कैन बी एनीथिंग, इंडक्शन मोटर और ए फ्रिज और अ हाउस होल्ड सप्लाई, लोड कैन बी एनीथिंग, ठीक है। सो दिस सेकेंडरी वाइंडिंग इज रिस्पॉन्सिबल टू सप्लाई द पावर टू दिस लोड। So we are saying it is transmitting power, electrical power from one circuit to another circuit through a magnetic circuit. Where is this magnetic circuit? This core is a magnetic circuit. This core, जो core है ferromagnetic material का बना हुआ है, this core, it is a magnetic circuit. So you can see these windings are not physically connected to each other. ये जो windings हैं, there is a space. ये कोर है, ये कोर का जो हमारा वर्टिकल पोर्शन है इसको हम लैग बोलते हैं, ठीक है, लैग या लिम्ब, और हॉरिजॉन्टल एरिया को हम बोलते हैं योक, ठीक है। ये जो हमारा याला एरिया हुआ हॉरिजॉन्टल, दिस एरिया इज कॉल्ड एज योक, और जो हमारा ऐसा वर्टिकल पोर्शन हुआ इसको लैग बोलते हैं, लैग या फिर लिम्ब, ठीक है, लैग बोलते हैं या तो लिम्ब बोलते हैं। तो हमने क्या कर रखा है, सो वी हैव रैप दिस वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग ऑन द लैग, ठीक है, हम वाइंडिंग लेग पे रैप कर रखी है। तो यू कैन सी जो हमारी वाइंडिंग्स हैं, दीज आर नॉट फिजिकली कनेक्टेड और इन फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है। इन वायर के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं कि हमने ये वायर इस वायर से कनेक्टेड हो, ठीक है, देयर इज नो। यहाँ पे दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ठीक है, आपस में सेपरेटेड हैं। इसलिए हम बोल देंगे ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Transformer works on the principle of electromagnetic induction.
मीन्स इट ट्रांसफर पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट थ्रू मैग्नेटिक डोमेन। सो हमारी ये जो पावर आ रही है प्राइमरी वाइंडिंग पे, इट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओनली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस कोर के थ्रू, कोर क्या हमारा मैग्नेटिक डोमेन है, ठीक है, जो फ्लक्स यहाँ ट्रांसफर हो रहा है ये क्या इसी फ्लक्स है, ठीक है। अब ये कोर क्या है, इस कोर में जो हमारा एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है इट इज थ्रू मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसने कोर को एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। दिस magnetic energy again converts back to electrical energy to this primary secondary winding. This magnetic energy from core converted back to the electrical energy in the secondary winding, and this secondary winding feeds power to this load, ठीक है। So you can understand why it is called why we said that transformer works on a electromagnetic principle or it is a electromagnetic device, ठीक है। हमारी एनर्जी ट्रांसफर कैसे हो रहा है, मैग्नेटिक डोमेन में। हम अपना कोई भी एनर्जी ट्रांसफर हो हमेशा मैग्नेटिक डोमेन में करते हैं, कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक डोमेन में नहीं करते। ये आपके खैर टॉपिक नहीं है, बट हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे जो मैग्नेटिक डोमेन में जो हमारे इक्विपमेंट का साइज होता है काफी छोटा होता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक डोमेन में हमारी जो एनर्जी ट्रांसफर हो, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए हमें बहुत बड़े इक्विपमेंट चाहिए, तो हमारा सारा एनर्जी ट्रांसफर हम मैग्नेटिक डोमेन में करते हैं, ठीक है। अब सो वन मोर पॉइंट, हमारा ट्रांसफर की एप्लीकेशन क्या है, आइदर इट विल स्टेप अप द वोल्टेज और स्टेप डाउन द वोल्टेज, ठीक है। स्टेप अप कहाँ कर रहे हैं, जैसे जनरेशन से ट्रांसमिशन पे गए। स्टेप डाउन कहाँ कर रहे हैं हम, जैसे ट्रांसमिशन लेवल से हम डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे आए, ठीक है। ट्रांसमिशन क्या मतलब क्या है, जैसे पावर प्लांट से सिटी तक जो आ रही है, पावर प्लांट से लेट्स से टहरी से जो पावर आपके हल्द्वानी तक आ रही है सब स्टेशन तक कहीं, वो ट्रांसमिशन है। उसके आगे का जितना भी हम ये पावर लाइन बिछाएंगे वो क्या काम होगी, डिस्ट्रीब्यूशन का। देयर इज ट्रांसमिशन लेवल, देयर इज सब ट्रांसमिशन, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन लेवल। सो हाउ विल यू डिफाइन इट, तो आपको स्टेप अप स्टेप डाउन की एप्लीकेशन है। स्टेप अप कैसे डिसाइड होता है, अगर जो मेरे ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर की जिस वाइंडिंग में, ठीक है, द वाइंडिंग विच हैज मोर नंबर ऑफ टर्न्स, द वाइंडिंग the winding of the transformer which has more number of turns is the high voltage winding, and vice versa। इसका मतलब क्या है, जो ट्रांसफार्मर की जिस भी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है वो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, और जिस वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, ठीक है, वो लो वोल्टेज वाइंडिंग है, ठीक है। लेट्स से हम अगर ऊपर हम बात करें फिगर में, अगर N1 is greater than N2, let's say number of turns in primary winding is greater than number of turns in secondary winding, मतलब N1 greater than N2 है, तो इसका मतलब क्या है, N1 is the high voltage winding, ठीक है, and N2 is the low voltage winding। तो ये ट्रांसफर कैसे, और हमने क्या दिया है, अगर हम, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कौन सा है, जो कि वोल्टेज को, जो भी वोल्टेज प्राइमरी पे है उसको सेकेंडरी में कम कर रहा हो, उसको स्टेप डाउन कर रहा हो। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या है कि मैंने इनपुट में लेट्स से 400 वोल्ट 440 वोल्ट इनपुट दिया, और एट सेकेंडरी आई एम गेटिंग 40 वोल्ट और 400 और 40 वोल्ट। ऐसे मैंने इनपुट में 220 केवी दिया और एट द आउटपुट साइड आई एम गेटिंग 33 केवी, ठीक है। तो कोई भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या है कि इनपुट कहाँ होगा, उसके हाई वोल्टेज साइड में। हाई वोल्टेज साइड कौन सी है, जहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, ठीक है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इनपुट कहाँ पे, हाई वोल्टेज वाइंडिंग पे, और आउटपुट कहाँ से हम कनेक्ट करेंगे, लो वोल्टेज वाइंडिंग पे। लो वोल्टेज वाइंडिंग कौन सी है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है। वैसे इफ आई हैव टू यूज द सेम ट्रांसफार्मर एज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, मुझे सेम ट्रांसफार्मर को, ठीक है, स्टेप अप की तरह यूज करना है, ठीक है। आई कैन यूज माई सेम ट्रांसफार्मर एज आइदर एज स्टेप डाउन और स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब क्या है कि जो मेरे प्राइमरी वाइंडिंग पे इनपुट है, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी है, जिसपे मैंने सोर्स कनेक्ट किया है, और सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी है, जिसपे मैंने लोड कनेक्ट किया है, ठीक है, लोड। तो अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा कि मेरा इनपुट पे क्या लो वोल्टेज है, और हाई वोल्टेज कहाँ, कौन साइड है, सेकेंडरी साइड, ठीक है। इनपुट में लो वोल्टेज वाइंडिंग से दे रहा हूं, इनपुट में लो वोल्टेज वाइंडिंग को दे रहा हूं। लो वोल्टेज वाइंडिंग कौन सी, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स मेरे कम है, और हाई वोल्टेज वाइंडिंग कौन सी होगी, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। तो अगर मैं लो वोल्टेज वाइंडिंग पे इनपुट दूं और हाई वोल्टेज वाइंडिंग से पावर ड्रॉ करूं, आउटपुट ड्रॉ करूं या लोड कनेक्ट कर दूं, तो वो स्टेप अप हो गया, ठीक है।
सो आई कैन यूज द सेम ट्रांसफॉर्मर एज आइदर एज स्टेप डाउन और स्टेप अप। मान लो ये ट्रांसफॉर्मर है और इसमें मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि N1 इज ग्रेटर देन N2। N1 इज ग्रेटर देन N2 मतलब अभी ये N1 ज्यादा N2 से, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, मतलब ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग है और ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है। मैंने अपना इनपुट कहाँ दिया है? हाई वोल्टेज वाइंडिंग पे, और आउटपुट कहाँ से लिया है? लोड कहाँ कनेक्ट किया है? लो वोल्टेज वाइंडिंग पे। मींस दिस ट्रांसफॉर्मर इज वर्किंग एज स्टेप डाउन, ठीक है। माय इनपुट एट हाई वोल्टेज एंड आई एम ड्राइंग माय आउटपुट फ्रॉम लो वोल्टेज, मींस दिस ट्रांसफॉर्मर इज वर्किंग एज स्टेप डाउन। Similarly, if I interchange the load and source position, if I interchange the source and load position, let's say if I connect this source at this N2 side और मैं लोड को N1 साइड कनेक्ट कर दूं, ठीक है। मैं अपनी सोर्स को मैंने यहाँ, अब मैं इनपुट यहाँ से दे रहा हूँ, इनपुट मैं N2 वाइंडिंग पे दिया और मेरा लोड मैंने N1 वाइंडिंग से ड्रॉ किया। लोड मैं कहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ? इस N1 पे। तो मेरा इनपुट वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स कम है, मतलब ये लो वोल्टेज वाइंडिंग हो गई, और मैं आउटपुट कहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ? अपना हाई वोल्टेज वाइंडिंग पे, ठीक है। मैंने लोड यहाँ लगा दिया, सोर्स यहाँ लगा दिया है। तो ये ट्रांसफर कैसे अब वर्क करेगा? स्टेप अप की तरह, इनपुट लो वोल्टेज, आउटपुट हाई वोल्टेज। सो I can use my transformer in either way, either step down or step up, depending on my usage, my application. ठीक है। Now the most important topic, ठीक है। So आप लोग समझ गए होंगे why it is called electromagnetic device, क्योंकि हमारी एनर्जी ट्रांसफर कैसी है? इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिकल अगेन। Now principle operation, this is the most important thing you have to understand first, कि ट्रांसफॉर्मर वर्क कैसे करता है। So I'm going to explain in this very easy manner, you all going to understand. So transformer is an AC device, transformer is an AC device, ठीक है। क्या हमारा AC डिवाइस है, इसका मतलब क्या है? इट वर्क्स ऑन ओनली ऑन AC। अगर आप इसमें DC सोर्स कनेक्ट कर दें, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ DC सोर्स कनेक्ट कर दूं, इफ आई कनेक्ट अ DC सोर्स इट वोंट वर्क। यहाँ पे क्या मेरी साइनोसॉइडल AC वोल्टेज कनेक्ट है, ये तभी काम कर रहा है कि यहाँ पे कुछ इनपुट दिए साइनोसॉइडल, आउटपुट साइनोसॉइडल मिला, साइनोसॉइडल इनपुट, साइनोसॉइडल करंट, साइनोसॉइडल फ्लक्स, साइनोसॉइडल इंड्यूस EMF, सब कुछ साइनोसॉइडल हमारा, ठीक है। So transformer is an AC device. If I connect a DC supply at the input, it won't work. हमें कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा. It will get blast. ठीक है, blast क्यों हुआ अलग बात है। So ट्रांसफर का प्रिंसिपल ऑपरेशन क्या है? बेसिकली आपने दो प्रिंसिपल आप लोगों ने स्कूल में पढ़े हैं। वन इज फैराडेज लॉ एंड अदर इज लेंस लॉ, ठीक है। कॉम्बिनेशन, इन दोनों कॉम्बिनेशन से इट वर्क्स ऑन बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ फैराडेज एंड लेंस लॉ, और यू कैन से इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ एंड लेंस लॉ, ठीक है। इन दोनों ही लॉ के कॉम्बिनेशन पे हमारा प्रिंसिपल वर्क करता है। अब फैराडेज लॉ क्या है कि कभी भी हमारा टाइम वेरिंग फ्लक्स कैसा हो गया? व्हाट इज टाइम वेरिंग फ्लक्स? अ साइनोसॉइडल फ्लक्स, ठीक है। दिस इज टाइम वेरिंग फ्लक्स, ये हमारा ओमेगा टी है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज फ्लक्स लेट से फाई, ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। जब भी हमारा टाइम वेरिंग फ्लक्स, ठीक है, हमारा कोई वाइंडिंग को लिंक कर रहा है, ठीक है, अ क्लोज सर्किट को लिंक कर रहा है। ये मेरी वाइंडिंग कैसी है? क्लोज वाइंडिंग है, इट इज अ क्लोज लूप, ठीक है। ये वाइंडिंग क्या, मेरा यहाँ से वायर गया, यहाँ वायर घूमी, ठीक है, इट इज कनेक्टेड हियर, इट इज अ क्लोज वाइंडिंग। मतलब करंट कैसे फ्लो करता है? जब हमारा सर्किट क्लोज हो, ओपन सर्किट है, कहीं ब्रेकेज है, करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। सो if a time varying flux links with a closed circuit, if a time varying flux links with a closed circuit, then there will be a induced EMF। तो हमारे सर्किट में क्या होगा? there will be induced EMF। तो यहाँ पे और देखिए हम let's say this is the definition. Faraday's law, EMF is induced in a coil whenever magnetic field linking that coil is changed, means a time varying flux, a time varying field, a time varying magnetic field is there, then there will be induced EMF, and EMF induced होगा। Second law says the magnitude of induced EMF is proportional to the rate of change of flux linkage. The magnitude of the induced EMF is proportional to the rate of change of flux linkage। जितनी रेट से ये फ्लक्स चेंज कर रहा है उसके प्रोपोर्शनली हमारा EMF इंड्यूस्ड होगा। और ये रेट ऑफ चेंज हमारा स्लो है तो
हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कम होगा। अब दिस रेट इज वेरी हाई, डिवाइड बाय dt इज वेरी हाई, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी ऑफ हाई मैग्नीट्यूड। देन ये तो हमारा फैराडेज लॉ है। अब यहाँ लेंस लॉ क्या होता है? लेंस लॉ इन बेसिकली यू हैव लिसन, यू हैव you have studied Len's law is effect opposes the cause. Definition यहाँ पे क्या लिख रखी है? This law states that the induced EMF due to change of flux linkage by a coil, induced EMF due to change of flux linkage of a coil will produce a current in the coil in such a direction that it will produce a magnetic field which will oppose the cause. अपोज क्या है? चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, तो फैराडे ने क्या बोला कि जो टाइम वेरिंग फ्लक्स है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, वो ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है। ठीक है, लेंस ने क्या बोला? ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से, ये एक ऐसा करंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, विल प्रोड्यूस अ करंट इन द कॉइल। ये करंट, ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो करंट ऐसा करंट प्रोड्यूस करेगा, या फिर ये करंट ऐसे डायरेक्शन में फ्लो करेगा जो कि इस मैग्नेटिक फ्लक्स को, ठीक है, इस मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करे। मींस ये जो ईएमएफ इंड्यूस है, ये करंट जो प्रोड्यूस करेगा, दिस करंट विल आल्सो प्रोड्यूस अ फ्लक्स व्हिच विल अपोज दिस फ्लक्स। ठीक है, will produce a current in the coil in such a direction that it will produce a magnetic field which will oppose the cause, it is change in flux linkage। ये जो करंट इंड्यूस करेगा ड्यू टू दिस ईएमएफ इंड्यूस्ड, ठीक है, कि मान लो इस ईएमएफ इंड्यूस से हमारा आई करंट प्रोड्यूस हुआ, ये आई करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि इस चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करे। That's why we have this minus sign here। ये माइनस साइन किस लिए है? ड्यू टू लेंस लॉ। लेंस लॉ में ये भी बता रहा है कि जो हमारा अप्लाइड वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज V1 है, और जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है आर इन फेज अपोजिशन। जो मैं अप्लाई वोल्टेज कर रहा हूँ, सोर्स वोल्टेज V1 है, और जो मेरा इंड्यूस्ड वोल्टेज हो रहा है, इट इज आर इन फेज अपोजिशन। ठीक है, these are in phase opposition। फिर हमारे दो टर्म होते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है? जब हमारा, जैसे मेरी कॉइल है ये, ठीक है, या मेरी कॉमन कॉइल दिखा रखी है, हम इसको अलग से समझ लेंगे यहीं से एग्जांपल से। ठीक है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है? ये E1 कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? E1 का प्रोड्यूस हो रहा है कि हमारा जो फ्लक्स है, ठीक है, E1 इज N1 माइनस N1 d∅dt। जो ये E1 है कौन से करंट की वजह से हो रहा है? इस कॉइल E1 क्या है? जो इस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से ये हमारा E1 इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये जो करंट फ्लो कर रहा है, ये क्या हमारा इस फ्लक्स को प्रोड्यूस किया, और उस फ्लक्स से चेंज से हमारा E1 इंड्यूस हुआ। ठीक है, तो जब करंट हमारा जिस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, उसी कॉइल में जो इंड्यूस ईएमएफ होगा सेल्फ इंड्यूस्ड होगा, मतलब वो खुद की कॉइल के करंट से इंड्यूस्ड हो रहा है। और म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे? ये जो E2 इंड्यूस हो रहा है वो कैसे इंड्यूस हो रहा है? वो दूसरी कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट तो हमारी कॉइल 1 में फ्लो कर रही है, बट इंड्यूस्ड ईएमएफ कहां हो रहा है? सेकेंडरी कॉइल में। सो दिस इज म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी है इसकी? The EMF induced in a coil due to change in flux linkage when a changing current flows through the coil। ठीक है, when the changing current flows through the coil is called self induced EMF। ठीक है, तो E1 में क्या है? E1 की जो कॉइल है उसी में करंट फ्लो कर रहा है, तो वो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF हो गया E1। और when a second coil is brought near a coil producing changing flux, ठीक है, E1 क्या हमारा, इसमें करंट फ्लो कर रहा है और चेंजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, दूसरी कॉइल को हम उसके पास लाएंगे पहली कॉइल के, तो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द सेकंड कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन द फर्स्ट कॉइल। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकंड कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन द फर्स्ट कॉइल, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये हमारा क्या हो गया? म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो E1 क्या हो गया हमारा? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब उसी कॉइल के करंट से इंड्यूस हो रहा है, और E2 हमारा म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब करंट तो हमारा कॉइल 1 में फ्लो कर रहा है, बट ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इफेक्ट, हमारी सेकेंडरी कॉइल में भी करंट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो ये आपको बस
समझने के लिए ये। सो लेट्स कम हियर। सो यू विल, तो आप समझ ही गए होंगे कि ट्रांसफॉर्मर किस पे वर्क करता है, फैराडे से लेंस लॉ के कॉम्बिनेशन में। लेंस बोलता है कि चेंजिंग फ्लक्स से हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ठीक है, और लेंस क्या बोलता है कि अफेक्ट विल अपोज द कॉज। अफेक्ट क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसा करंट प्रोड्यूस करेगा जो इस चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करे। मतलब ये करंट जो इंड्यूस होगा वो ऐसी, वो एक फ्लक्स ऐसा प्रोड्यूस करेगा जो इस फ्लक्स को अपोज करे, ठीक है, इसके फ्लक्स को मैग्नीट्यूड को रिड्यूस करने की कोशिश करे। दैट्स व्हाई जो हमारा फैराडेज और लेंस लॉ का कॉम्बिनेशन है इसको हम क्या बोल लिखते हैं, E - n d∅dt। n इज नंबर ऑफ टर्न्स इन द वाइंडिंग। जो भी वाइंडिंग है, आइदर प्राइमरी वाइंडिंग तो E1 हो जाएगा, सेकेंडरी वाइंडिंग है तो N2 आ जाएगा, ठीक है। हमारे फ्लक्स भी क्या होते हैं, दो तरह के फ्लक्स होते हैं, ठीक है। वी हैव टू काइंड्स ऑफ फ्लक्स। तो हम प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर की बात करें, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर की जो हम यूज करते हैं प्रैक्टिकली, उसमें दो तरह के फ्लक्स होते हैं। लेट्स से मेरा टोटल फ्लक्स फाई है, माय टोटल फ्लक्स इज फाई, तो इसमें मेरे दो तरह के फ्लक्स होंगे। एक तो मेरा ज्यादा बड़ा होंगे, एक मेरा म्यूचुअल फ्लक्स होगा पाई एम, और एक मेरा लीकेज फ्लक्स होगा, ठीक है। तो म्यूचुअल क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम काम करेंगे, मतलब आपसी समझौते से, मतलब जो कि दोनों को ही शेयर हो रहा हो। म्यूचुअल फ्लक्स इज कॉमन टू बोथ द वाइंडिंग्स, ठीक है। म्यूचुअल फ्लक्स कौन सी फ्लक्स है, विच इज लिंकिंग बोथ द वाइंडिंग, माई प्राइमरी वाइंडिंग एज वेल एज माई सेकेंडरी वाइंडिंग, इसलिए हम क्या लिखते हैं d∅dt, एंड फाई इज म्यूचुअल फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स कौन सा है, लीकेज फ्लक्स इज द फ्लक्स विच इज लिंकिंग आइदर वाइंडिंग, या तो सिर्फ प्राइमरी वाइंडिंग को लिंक कर रहा है, और या तो वो बस सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक कर रहा है, इट इज नॉट लिंकिंग बोथ द वाइंडिंग्स, ठीक है। सो जैसे हमारे सोर्स है ये कुछ फ्लक्स प्रोड्यूस कर रही है, तो हमारी कुछ फ्लक्स यहाँ पे प्राइमरी साइड में कुछ एयर में लीक हो जाती है, ठीक है, कुछ एयर में लीक हो गई, ठीक है, कुछ एयर में लीक हुई और कुछ कोर के थ्रू यहाँ मेरी ट्रेवल कर रही है इन दिस मैग्नेटिक पाथ, ठीक है। कुछ मेरी फ्लक्स इस मैग्नेटिक पाथ क्या, कोर का जो पाथ उसमें ट्रेवल कर रही है, एंड लिंकिंग बोथ द वाइंडिंग्स, माय प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वाइंडिंग, तो दैट इज म्यूचुअल फ्लक्स। लीकेज क्या है, जो कि सिर्फ एक ही वाइंडिंग को लिंक कर रही है, या प्राइमरी या सेकेंडरी को, इट इज गेटिंग लीक्ड, वो लीक हो जा रही है, वेस्ट हो रही है, ठीक है। सो हमारी हमारी व्हाट आर द हमारे आवर प्रायोरिटी इज टू our priority is to minimize this leakage flux. So we will consider first the ideal case. Ideal case क्या है, there will be no leakage flux, our total flux will be mutual flux, ठीक है। तो हम ट्रांसफर के प्रिंसिपल को बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे। इन नोट्स में मैंने कहीं प्रिंसिपल नहीं लिखा है, इन द क्लास नोट्स वी आई हैव यू कैन राइट डाउन द प्रिंसिपल फ्रॉम द क्लास नोट्स ओनली, ठीक है, जो लास्ट टाइम मैंने क्लास में लिखवाए थे। तो ट्रांसफर प्रिंसिपल को हम समझे। सो मेरा इस डायग्राम को आप देख लीजिए, इनपुट पे क्या है मेरा V1 सोर्स है, साइनोसॉइडल AC सोर्स। अभी मैं नो लोड की बात कर रहा हूँ, नो लोड कंडीशन। नो लोड क्या है, ये जो मेरा स्विच है यहाँ पे इट इज ओपन सर्किटेड, मतलब मेरा भी सर्किट में कोई करंट नहीं है, मेरा लोड साइड करंट नहीं है, ठीक है। दिस I2 विल बी जीरो। लोड में मेरा कौन सा करंट फ्लो करेगा, I2, लिखा नहीं है, मे बी आई फॉरगेट टू राइट। अभी क्या है, ओपन सर्किट है, मतलब मेरा लोड करंट जीरो है, कोई लोड नहीं कनेक्ट किया है, ठीक है। तो जब सर्किट मेरा नो लोड पे है तो मेरा उस कंडीशन क्या फ्लो करता है, नो लोड करंट। और नो लोड करंट को हम एक्साइटिंग करंट और ऑल्सो बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज एक्साइटिंग करंट। सो वी डिनोटेड इट बाई either IE exciting current or by no load current by I0, ठीक है। एक्साइटिंग करंट और नो लोड करंट आर बोथ सेम। सो इनपुट में मेरा एक साइनोसॉइडल AC सोर्स है, तो ये जो इंड्यूस EMF है वो भी क्या होगा, तो लेट्स से जो उसका यू कैन से फ्लो चार्ट है, तो साइनोसॉइडल AC अप्लाइड वोल्टेज एट द इनपुट साइड, दिस V इज अ साइनोसॉइडल। एक साइनोसॉइडल सोर्स कैसा करंट प्रोड्यूस करेगा, करंट विल ऑटोमेटिक नेचुरली बी अ साइनोसॉइडल करंट। अब जब करंट मेरा साइनोसॉइडल है, ठीक है, करंट मेरा जब साइनोसॉइडल है तो मेरा फ्लक्स भी कैसा होगा, साइनोसॉइडल ही होगा, फ्लक्स इज आल्सो साइनोसॉइडल। अब जो मेरा साइनोसॉइडल फ्लक्स है, अब मेरा फ्लक्स साइनोसॉइडल है, मतलब क्या है, एक साइनोसॉइडल फ्लक्स क्या है, इट इज टाइम वेरिंग। यहाँ पे मेरा ओमेगा टी है, इट इज वेरिंग विद द टाइम, टाइम के साथ वेरी कर रही है कि अभी एक सेकंड बाद कुछ है, एक सेकंड बाद इसका मैग्नीट्यूड चेंज करेगी ना साइकिल। सो टाइम वेरिंग फ्लक्स विल इंड्यूस अ इंड्यूस्ड EMF।
अब प्राइमरी वाइंडिंग में हमारा कैसा है ईएमएफ इंड्यूस होगा, सेल्फ इंड्यूस्ड, क्योंकि करंट भी इसी वाइंडिंग में फ्लो कर रहा है। जिस वाइंडिंग में करंट है उस वाइंडिंग में कैसा है ईएमएफ इंड्यूस होगा, सेल्फ इंड्यूस्ड। सेल्फ इंड्यूस्ड वाइंडिंग करंट, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा किसमें, प्राइमरी वाइंडिंग में, दैट इज E1 is minus N1 d phi by dt. Similarly, in secondary winding we have this E2. E2 is minus N2 number of turns in the secondary winding d phi by dt. Phi is same here, ठीक है, phi same है, कौन सा phi है, म्यूचुअल फ्लक्स। अभी हम आइडियल केस कंसीडर कर रहे हैं कि मतलब हमारा लीकेज फ्लक्स जीरो है। सो तो म्यूचुअल फ्लक्स इंड्यूस इन सेकेंडरी वाइंडिंग, और जो मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग का इंड्यूस्ड ईएमएफ है, दिस ईएमएफ इज रिस्पॉन्सिबल टू फीड पावर टू द लोड। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्या है, मेरी वाइंडिंग्स आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई करंट का पाथ नहीं है। मेरी वाइंडिंग, मेरी ये दोनों वाइंडिंग क्या है, फिजिकली आइसोलेट है, दीज आर आइसोलेटेड। यहाँ पे कोई ऐसा कोई वायर नहीं जा रहा है जो करंट मेरा यहाँ पास हो जाए। फिर भी ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देयर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, वोल्टेज आ गया, तो वोल्टेज है तो अगर मैं यहाँ सर्किट क्लोज कर दूं अपना ओपन से, तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। वो जब करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे पावर, जो भी लोड है मेरा, उसको पावर सप्लाई हो जाएगी। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। So this mutual induced EMF in the secondary winding is responsible to feed power to the secondary load. तो अगर हमारा स्विच हम, so you can यहाँ पे एक चीज नोट करिए, मेरा E1 is minus N1 d phi by dt, N2 is minus N2 d phi by dt। ये माइनस साइन किस लिए है, जो माइनस साइन क्या बता रहा है कि E1 E2 क्या हमारे फेज अपोजिशन में है टू द V1। E1 एंड E2 आर इन फेज अपोजिशन। ठीक है, अगर आप यहां पर भी हमारा देखिए तो हमारा यहाँ मेरा करंट फ्लो करेगा, ठीक है, सर्किट में मेरा I1 ये करंट हो, लेट्स से कि यहाँ पे मेरी कोई वाइंडिंग होती, इधर पे मेरी कोई वाइंडिंग होती है, अभी मैं आइडियल केस कर रहा हूँ, तो मैं जो ये वायर है इसकी कोई वाइंडिंग रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, बट एक प्रैक्टिकल ट्रांसफर में यहाँ पे कुछ वाइंडिंग होगी, कुछ इंडक्टेंस होगी, लेट्स से दिस R वाइंडिंग है, तो मेरा करंट क्या होता, V1 माइनस E1 अपॉन दिस R। ठीक है, सो V1 और E1 के एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। ये जो E1 है वो इस करंट को फ्लो करने से अपोज कर रहा है। ये मेरा I क्या है, V1 माइनस E1 अपॉन R। ठीक है, तो ये क्या मेरा एक्साइटिंग करंट है, V1 माइनस E1 अपॉन R। तो दिस E1 इज डायरेक्टली इन फेज अपोजिशन टू द V1। ठीक है, तो सो यू कैन सी E1 एंड E2 आर इन फेज अपोजिशन टू द V1। दिस इज वाई लेंस लॉ क्या बोलता है, जो भी इफेक्ट है, जो भी कॉज है, जो भी इफेक्ट है वो कॉज को अपोज करेगा। कॉज क्या है, चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो जो ये E2 है, अगर हम लोड कनेक्ट करते हैं, लोड को हम कनेक्ट करते हैं, स्विच को क्लोज करते हैं, I2 ऐसे फ्लो करेगा कि ये फ्लक्स को अपोज करे। सो हम पहले देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स कैसे है। ठीक है, चलो हम पहले देख लेते हैं। जस्ट टू सिंप्लीफाई द प्रिंसिपल आई हैव ड्रॉन दिस फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट कहीं आपको लिख के नहीं आना है, ठीक है, बस जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग आई हैव ड्रॉन दिस फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या बोलता है, आपने प्राइमरी वाइंडिंग में पहले एसी वोल्टेज की सप्लाई दी, दिस एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई, एसी वोल्टेज सप्लाई ने एक साइनसॉइडल वोल्टेज, एक एसी करंट फ्लो किया। एसी करंट मतलब टाइम वेरिंग करंट, और दिस करंट इज, ये क्या अभी हमारा, दिस इज नो लोड। अभी हमारा नो लोड की बात चल रही है, नो लोड। ठीक है, नो लोड है तो सिर्फ क्या है, एक्साइटिंग करंट या नो लोड करंट हमारी प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो कर रहा है। ये प्राइमरी करंट, एक्साइटिंग करंट या नो लोड करंट विल प्रोड्यूस एन एमएमएफ। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग में जो भी नंबर ऑफ टर्न्स है उनसे करंट, उनमें करंट ये फ्लो करेगा तो ये एमएमएफ प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। एमएमएफ will produce a flux. This flux is consist of mutual flux plus leakage flux. ठीक है, leakage flux क्या है, which links either winding, ठीक है, but not both। और mutual flux क्या है, which links both the winding। This mutual flux is responsible for the power transfer or the energy transfer, ठीक है, और for the production of the voltage। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसको भूल जाओ, लेकिन अभी हम वैसे भी आइडियल केस कंसीडर कर रहे हैं। आइडियल केस our leakage flux will be zero and whole flux will be mutual flux only, कुछ लीक नहीं हो रहा है। अब ड्यू टू दिस चेंज ऑफ म्यूचुअल फ्लक्स, ये म्यूचुअल फ्लक्स जो चेंज हो रहा है, तो
हमारा क्या प्रोड्यूस हो रहा है, E1, E1 is in the primary voltage side, primary winding, self-induced EMF in the primary winding, and E2. E2 is approximately equal to V2, और similarly here E1 is also, जो हमारा V1 और E1 का मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट बराबर ही होता है। बराबर क्यों? V1 के बाद क्या हमारे प्रैक्टिकल ट्रांसफर की बात करें, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल ट्रांसफर की बात करें, ठीक है, इस सर्किट में V1 के बाद ये वायर है, इस वायर की जो रेजिस्टेंस होगी वो बहुत ही छोटी होगी, ठीक है, बहुत ही कम, कुछ मिली ओम्स में होगी, तो उसमें इस जो ड्रॉप होगा इस मिली ओम रेजिस्टेंस वो भी बहुत कम होगा। मतलब कि V1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू E1 बट दे आर इन फेस अपोजिशन, और आइडियल केस में ये क्या है, इक्वल है बट आर इन फेस अपोजिशन, ठीक है, माइनस साइन क्या बता रहा है, ये फेस अपोजिशन में है। सॉरी, सो AC अप्लाइड वोल्टेज हम कहाँ पे थे, E1 सेल्फ इंड्यूस्ड EMF में, E2 ऑलमोस्ट इक्वल टू V2, E2 इज म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, एंड ड्यू टू लेंस लॉ बोथ E1 एंड E2 आर इन फेज अपोजिशन टू द अप्लाइड वोल्टेज V1, ठीक है। तो यहाँ पे जो E1, E2 और V2 है, ठीक है, E1 प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड EMF, E2 सेकेंडरी वाइंडिंग में, और V2 क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल लोड वोल्टेज, ठीक है, ये क्या है, फेस में भी होते हैं E2, यहाँ पर कुछ मान लो रेजिस्टेंस होती है हल्की फुल्की तो कुछ डिफरेंस होता है, बट E2 एंड V2 आर बोथ इक्वल। E2 के इंड्यूस ईएमएफ और V2 को हमने नाम दे दिया है, जो भी इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज है, बोथ आर इक्वल, ठीक है, E2 एंड V2 बोथ आर इक्वल। यहाँ की जो रेजिस्टेंस बहुत कम होती है वायर की रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये इन दोनों ही इन फेस में होते हैं, ठीक है। सो E1 E2 are phase opposition to the V1, ठीक है, and this E1 E2 and V2 are in same phase, ठीक है। तो this by small letters we are representing the instantaneous quantity, small letter हमारा instantaneous quantity बताता है, capital letter RMS value। So I have already mentioned V1 and E1 are in phase opposition, I नोट की वैल्यू क्या होगी, नो लोड में V1 माइनस E1, तो E1 क्या बोस कर रहा है इस करंट के फ्लो को, तो हमारा क्या है, अफेक्ट अपोजिट द कॉस, कॉस क्या है, चेंजिंग फ्लक्स, और चेंजिंग फ्लक्स को क्या है, एक तरह से आइनोटी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। सो V1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ E1, ठीक है, तो V1 इज माइनस E1, E1 क्या था, माइनस N1 d5m by dt, और 5m 5 आर सेम, ठीक है। सो V1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ E1 मींस इज इक्वल टू N1 d5m by dt। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन E1 E2 V2 क्या होंगे, तीनों फेस में होंगे एक दूसरे के साथ, और E2 एंड V2 आर सेम, ठीक है। E2 is responsible to deliver power to the load connected at the secondary side, ठीक है। So one of the important things is how we find out the direction of flux, ठीक है, how we find out the direction of the flux। हम फ्लक्स का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इज गिवन बाय राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। हमें उसके लिए क्या करना है, पुट योर फिंगर्स और रैप योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग द वाइंडिंग्स, पुट योर फिंगर्स और wrap your finger in the directions of current flowing in the windings, the direction of thumb will give you the direction of flux, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट, जो भी आपका करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर रखिए, और थंब का डायरेक्शन आपको फ्लक्स का डायरेक्शन देगा, ठीक है। जैसे हम यहां देखेंगे इन द डायग्राम ओनली, डायग्राम हर बार ऊपर चले जा रहा है, so I have also taken the separate image, no need to, ठीक है, I have also taken this separate image, ठीक है। So to find out the direction, so to find out the direction